सिंकोप दैट मीन्स अनकॉन्शियसनेस और जिसे हम कहते हैं बेहोश होना. So syncope is the most common medical emergency which we can face anywhere. For example, if we are doing a procedure on a patient in our clinic and suddenly patient unconscious हो जाता है यानी कि syncope की condition में चला जाता है, how do we manage at that right moment? उसके अलावा घर पे भी हमें कोई भी मिल सकता है या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पे. फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पे कोई पर्सन एकदम सिंकोप की कंडीशन में चला जाता है. सो एज बीइंग अ डॉक्टर व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? वी हैव टू मैनेज द सिचुएशन एट राइट मोमेंट. That's why this topic is very important. Hello everyone, welcome to my channel. My name is Shweta Sharma and today in this video we will be discussing all important things related to syncope. For example, how do we manage the situation of syncope? Along with that, basic life support that is very important for every health professional. Along with that, CPR के क्या क्या methods होते हैं किसी अडल्ट में या फिर चाइल्ड में या फिर इन्फेंट्स में. इन तीनों में अलग अलग तरीके से सीपीआर दिया जाता है. उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं और हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए, कितने कंप्रेशंस देने होते हैं, क्या रेट होता है, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. First of all, look at the definition here. As I have earlier told you, syncope is unconsciousness. So, you can see right here, syncope is sudden transient loss of consciousness. Transient, that means for a short period. This is unconsciousness for a short period in which patient loses their balance. They will lose their body posture and you can see right here, which is followed by spontaneous and complete recovery. And most commonly it is due to cerebral hypoperfusion. That means oxygen supply of the cerebrum is reduced and that is why patient goes into syncope. Now reason can be anything, either psychological or non-psychological. Psychological में क्या क्या हो सकता है? फ्राइट, एंग्जाइटी, इमोशनल स्ट्रेस. हमारे पास पेशेंट आया है, वो बहुत डरा हुआ है ट्रीटमेंट को लेके, उसकी वजह से एकदम सिंकोप में जा सकता है. और अपराइट पोजीशन यानी कि वो काफ़ी लंबे समय से स्टैंडिंग पोजीशन में रहने से या फिर हंगर, कोई भी मील मिस किया है पेशेंट ने, एग्जॉशन की वजह से. अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, हम जब स्कूल में जाते थे वहाँ पे प्रेयर होती है, वहाँ पे भी अ लॉट ऑफ टाइम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स सिंकोप में चले जाते हैं, एकदम बेहोश हो जाते हैं. मे बी ड्यू टू ह्यूमिड एनवायरनमेंट और मे बी उन्होंने ब्रेकफास्ट अपना स्किप किया होता है. तो इन रीजंस की वजह से पेशेंट्स या फिर कोई भी पर्सन सिंकोप की कंडीशन में जा सकता है. तो अब पॉइंट आता है, हाउ डू वी मैनेज सच पेशेंट? एकदम पेशेंट हमारे सामने कोलैप्स कर गया है, सिंकोप की कंडीशन में एकदम चला जाता है, तो उसी टाइम हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे आती है पॉइंट बेसिक लाइफ सपोर्ट. बेसिक लाइफ सपोर्ट में हम बेसिकली क्या करते हैं, सीरियल मैनर में हम सारी चीज़ें करते हैं. सबसे पहले हम पोजीशन चेक करते हैं, पोजीशन ठीक करते हैं पेशेंट की. उसके बाद एयरवे ABCD, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड डेफिनेटिव केयर. इसमें क्या क्या आता है? तो सबसे पहले हम पोजीशन करेक्ट करेंगे so that the blood supply to the brain will be increased. So here it is Trendelenburg's position. इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को सबसे पहले सुपाइन पोजीशन में लिटाते हैं. उसके बाद 10 to 15 डिग्री पे लेग्स को फ्रॉम द लेवल ऑफ हेड एंड हार्ट लेग्स को एलिवेट करते हैं. So this is Trendelenburg's position. Now the question arises, in pregnant ladies, which position should be taken in case of syncope? We are not supposed to lie down the pregnant ladies in Trendelenburg position, right? So for pregnant ladies, the left lateral position should be there. You can see right here, this is aorta and this is inferior vena cava. Due to the load of this uterus, these blood vessels are suppressed. When we lie down the pregnant lady in left lateral position, as you can see right here, pressure will be released and these blood vessels will work normal again. So this is how we will correct the position in pregnant ladies.
लेफ्ट लेटरल पोजीशन। पर अब पॉइंट आता है, अगर इसके बाद भी पेशेंट सिंकोप से रिकवर नहीं होता है, उसमें अब हम आगे क्या करेंगे? तो उसके बाद जैसा हमने BLS में यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट में सीखा, सबसे पहले हम पोजीशन करेक्ट करते हैं। अगर पोजीशन ठीक करने के बाद भी पेशेंट रिकवर नहीं होता है, देन वी विल गो फॉर ए, दैट मीन्स वी विल चेक एयरवे। एयरवे भी अगर हमने सही कर दिया है, फिर भी अगर पेशेंट रिकवर नहीं होता है, फिर हम ब्रीदिंग चेक करते हैं, उसके बाद हम सर्कुलेशन चेक करते हैं। तो अभी हमने पोजीशन करेक्ट की है, पर अगर पोजीशन के बाद भी पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है, देन वी विल चेक द एयरवे। तो हम एयरवे में क्या चेक करते हैं? सिंकोप के पेशेंट्स में जनरली जो हमारी टंग होती है वो पीछे की तरफ फोल्ड कर जाती है, जिसके वजह से एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो उसके लिए हम टिल्ट हेड एंड लिफ्ट चिन ये हम करते हैं, जिससे एयरवे क्लियर हो जाता है। आप यहाँ पे अब डायग्राम देखिए। From one hand, we will tilt the head, and with the help of another hand, we will lift the chin like this. Alright, you can either use this technique or you can do is what? With the help of both of the ends, you will hold the head and you will thrust the jaw with the help of thumbs like this. So both of these techniques will help you to clear the airway in the patient so that they can breathe easily. Now हमने airway clear कर लिया है, उसके बाद हम breathing चेक करेंगे कि breathing अब सही चल रही है या नहीं। तो ब्रीदिंग चेक करने का हमारे पास क्या तरीका होता है? आवर आइज शुड बी ऑन द चेस्ट ऑफ द पेशेंट। चेस्ट राइज हो रही है या नहीं हो रही है, ये हम आइज के थ्रू देखेंगे। एंड आवर ईयर्स शुड बी ओवर द नोज और माउथ so that we can listen the breathing sounds. And the most important thing, we have to check the breathing for 10 seconds only. Because अगर हम ज़्यादा टाइम ब्रीदिंग चेक करने में ही लगाएंगे, अगर ब्रीदिंग चल ही नहीं रही है तो उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई भी फ़ायदा हमें नहीं है, राइट? तो इसलिए दिस इज़ द करेक्ट पोस्चर टू चेक द ब्रीदिंग इफ़ पेशेंट इज़ ब्रीदिंग और नॉट। अगर पेशेंट ब्रीद नहीं कर रहा है, अगर हमें पेशेंट में कोई भी चेस्ट मूवमेंट नहीं दिख रही है, हमें ईयर में कोई भी ब्रीदिंग साउंड नहीं आ रही है, देन व्हाट विल वी डू? वी हैव 3 ऑप्शंस। हम पेशेंट को 3 तरीके से ब्रीदिंग करवा सकते हैं। सबसे पहला होता है एक्सेल्ड एयर, यानी कि जिसमें हम अपने मुंह से पेशेंट के मुंह में या फिर पेशेंट की नोज़ में डायरेक्टली एयर एक्सेल करते हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके हैं एक्सेल्ड एयर के, जिसमें यू कैन सी राइट हियर डायरेक्ट माउथ टू माउथ कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट माउथ टू नोज कॉन्टैक्ट, एंड द थर्ड इज पॉकेट मास्क ब्रीदिंग, जिसमें से आई ऑलवेज प्रेफर पॉकेट मास्क ब्रीदिंग। इनफैक्ट इन द कोविड एरा दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू शुड कैरी द पॉकेट मास्क ब्रीदिंग ऑल द टाइम इफ इट इज़ पॉसिबल इन योर बैग। अलॉन्ग विद दैट आपके क्लिनिक पे तो होना ही होना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता है पेशेंट से, या फिर अगर आपके पास पॉकेट मास्क नहीं है तो आप एक और काम कर सकते हो, आप कोई भी हैंकी आप पेशेंट के माउथ पे रख दीजिए एंड उसके बाद यू कैन गिव डायरेक्ट माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। ओके, तो अगर पेशेंट ब्रीद नहीं कर रहा है तो मैंने बताया है 3 तरीके से हम पेशेंट को ब्रीद करवा सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला हमने किया है वाया एक्सेल्ड एयर, जिसमें हम डायरेक्ट पेशेंट को एक्सेल एयर देते हैं। उसके अलावा सेकंड इज एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर हम कैसे दे सकते हैं? एम्ब्यूबैग से। उसके अलावा थर्ड हमारे पास होता है आर्टिफिशियल एयर। अब आर्टिफिशियल एयर किससे दे सकते हैं हम? वेंटिलेटर से। तो इन सभी में से जो सबसे चीपेस्ट तरीका हो सकता है एंड इफ़ेक्टिव ऑल्सो, दैट इज़ एम्ब्यूबैग। आप हमेशा अपने क्लिनिक पे एम्ब्यूबैग तो ज़रूर रखिए, जिससे इन केस अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है सो दैट यू कैन यूज़ इट ईजिली। So second is atmospheric air via ambubag, and the third one is artificial air by ventilator. So these are the 3 ways which we can provide the patient for breathing. अब पॉइंट आता है, हमने पेशेंट की पोजीशन सही कर दी है, उसके बाद भी पेशेंट कॉन्शियस नहीं हो रहा है, उसके बाद हम एयरवे क्लियर करते हैं।
एयरवे क्लियर करने के बाद हम पेशेंट को ब्रीथ कराते हैं, पर ब्रीथ कराने के बाद भी अगर पेशेंट सिंकोप में ही है, रिकवर नहीं हो रहा है, देन व्हाट विल वी चेक? वी विल चेक सर्कुलेशन। नाउ सर्कुलेशन में हम कौन कौन से पल्स चेक कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए, आइदर रेडियल पल्स और कैरोटिड पल्स, इनमें से कोई भी एक पल्स आप जल्दी से चेक कीजिए, जस्ट फॉर 10 सेकेंड्स। अगर इनमें से कोई एक भी काम नहीं कर रही है, देन एट द मोमेंट वी हैव टू गो फॉर CPR। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPR? CPR की अगर आपको फुल फॉर्म आती है या फिर ऑप्शन A, B, C, D आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नाउ द आंसर इज ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसमें हम हार्ट को एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को, इन दोनों को रिससिटेट करते हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज CPR। Now the most important point, what should be our position while we are giving CPR to the patient? Our hands should be straight and our body should be over the patient so that we can apply the maximum force. अगर हम यहाँ पे straight बैठे हुए होंगे और यहाँ से हम hand से compression करेंगे, then this is so obvious कि हम हमारा maximum force patient पे apply नहीं कर पाएंगे. So that is why our hands should be straight and our body should be over the patient so that we can apply the maximum force. तो अब क्वेश्चन आता है, CPR की क्या क्या टेक्निक होनी चाहिए, क्या हमारा रेट होना चाहिए, क्या पोजीशन होनी चाहिए, ये सब, और वो भी अडल्ट्स में, चाइल्ड में एंड इन्फेंट्स में, इन तीनों में डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हैंड पोजीशन देखते हैं। पार्डन मी बिकॉज आई नो दिस फोटो इज़ वेरी ब्लर, पर ये सभी फ़ोटोज़ एक्चुअली मैंने गूगल से ही ली हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आगे एक और क्लियर पिक्चर है, पर यहाँ पे एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। अडल्ट में हम क्या करते हैं, 2 हैंड्स आर यूज्ड ऑन द सेंटर ऑफ चेस्ट बिटवीन द निपल्स। हमारे हैंड्स की पोजीशन क्या होगी, सेंटर ऑफ चेस्ट बिटवीन द निपल्स। इन चाइल्ड वी कैन यूज आइदर वन और बोथ द हैंड्स, और हैंड की पोजीशन क्या होगी, in the center of the chest between the nipples, same as the adults, but in child we can use either one hand or both hands. Now for the infants के लिए we can use 2 fingers only, just below the nipple line के just below we can use 2 fingers for the chest compression. अब आते हैं कंप्रेशन पे, हमें चेस्ट को कितना कंप्रेस करना है, 1.5 to 2 inch in adults, that means approx 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर जितना हमें चेस्ट को कंप्रेस करना है अडल्ट्स में। उसके अलावा चाइल्ड में एंड इन्फेंट्स, इन दोनों में हम 1/2 इंच तक चेस्ट को कंप्रेस कर सकते हैं। नाउ अब क्वेश्चन आता है, हमें साइकिल क्या होना चाहिए, यानी कि कितनी बार कंप्रेशन करना है, कितनी बार ब्रीदिंग देनी है। तो आफ्टर एवरी 30 कंप्रेशंस वी हैव टू गिव 2 ब्रीथ्स, दैट मीन्स 30 कंप्रेशन दिए जल्दी जल्दी से, उसके बाद 2 ब्रीथ, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ्स, 30 compression 2 breaths, and we have to repeat this cycle until the patient do not recover from this situation. Now what should be the rate of breathing? हम पहली बात तो हम ब्रीदिंग कैसे दे सकते हैं, या तो हम पॉकेट मास्क से दे सकते हैं, या डायरेक्ट माउथ टू माउथ दे सकते हैं, या फिर एम्ब्रियो बैग से दे सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके होते हैं जिनसे हम ब्रीदिंग दे सकते हैं। अब पॉइंट आता है, ये बिल्कुल स्लोली देने हैं, अडल्ट्स में भी, चाइल्ड में भी एंड इन्फेंट्स में भी। ऑलराइट, उसके बाद ब्रीथ देते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि चेस्ट पेशेंट की राइज होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम यहाँ से ब्रीथ देंगे पेशेंट को, तो पेशेंट की चेस्ट राइज तो होनी चाहिए ना। सो अंटिल चेस्ट राइजेस वी हैव टू गिव ब्रीथ वेरी स्लोली। ऑलराइट, यहाँ पे आप टाइमिंग भी देख सकते हैं, एक ब्रीथ 2 सेकेंड्स में दे सकते हैं हम। सो दिस शुड बी द रेट। इन अडल्ट्स 2 सेकेंड पर ब्रेथ, in child 1 to 1.5 seconds per breath, and in infant also 1 to 1.5 seconds per breath. नाउ कंप्रेशन रेट क्या होना चाहिए, यानी कि हम पेशेंट की चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, उसका रेट क्या होना चाहिए, 100 कंप्रेशंस
पर मिनट। दैट मीन्स 60 सेकेंड में हमें 100 कंप्रेशन देने होते हैं। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 सेकेंड में हम 1.5 कंप्रेशन देते हैं। दैट शुड बी आवर स्पीड। दैट मीन्स आवर स्पीड शुड बी वेरी फास्ट सो दैट वी कैन कंप्लीट 100 कंप्रेशंस इन 60 सेकेंड्स ओनली, राइट। पर अब इसमें पॉइंट क्या आता है कि आफ्टर एवरी 30 कंप्रेशंस वी हैव टू गिव 2 ब्रीथ्स ऑल्सो, राइट। सो हमें जल्दी 30 कंप्रेशन देने हैं और स्पीड क्या होनी चाहिए, 100 कंप्रेशन पर मिनट की स्पीड से हम जल्दी से 30 कंप्रेशन देंगे। एंड बेटर होगा कि आप साथ में काउंटिंग भी करते रहिए उस टाइम पे, 1 2 3 4, आफ्टर 30 2 ब्रेथ, after 30 2 breaths. So this should be your cycle and repeat the cycle until the patient is not recovering from this condition. यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर दिया हुआ है पर बातें सारी वही हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हम चेस्ट कंप्रेस करते हैं उसका फ़ायदा क्या होता है। सी इफ़ वी आर कंप्रेसिंग द चेस्ट फॉर अप्रोक्स 1.5 to 2 inch, that means approx 5 centimeter. By compressing the chest we will excite the heartbeat and heart will start to work by itself. अब यहाँ पे पोजीशन देखिए, आपके हैंड्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। सेकेंड इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। दिस थर्ड वन शुड बी योर हैंड्स पोजीशन। इससे फ़ायदा क्या है, एक तो आपके हैंड्स प्रॉपरली लॉक हो जाते हैं एंड अलोंग विद दैट यू विल बी एबल टू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स वाइल कंप्रेशन। नाउ पोजीशन, your body should be over the patient, not like this. You should come in forward direction so that you can apply the maximum force. So this position is wrong. In second position wrong क्या है यहाँ पे, hands position. Hands should be straight so that you can apply the maximum force. So this position is also wrong. The third position in which hands are straight and the body of the doctor is over the patient, that is perfect. Now here is the compression in infants. How you are supposed to give the compression with the help of 2 fingers, right, and just below the line of nipple. और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, राइट डाउन द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लिनिक। इससे एक तो इमरजेंसी नंबर्स जो होंगे वो विजिबल होंगे और ज़्यादा जल्दी याद होंगे, और अगर पेशेंट के साथ कोई रिलेटिव आया है और आपके असिस्टेंट होंगे वो जल्दी से इमरजेंसी एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं। सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल in every emergency situation. So yes, this was all about today's video. अगर आपको और भी मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशंस पे वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। I will definitely make videos on other medical emergencies also so that we will manage other medical emergencies in our clinic. Alright, if you like this video, give a thumbs up. Along with that, don't forget to subscribe the channel एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। सो थैंक यू एंड बी हैप्पी।